Am I visible to everybody? Just put in chat. Yeah. So we'll start from what we have left yesterday. So चलो थोड़ा पहले बात कर लेते हैं why data structure is so much important for the JF interview. Why data structure के ऊपर इतना emphasis क्यों दिया जाता है ना? Then we will talk about the installation and all these things. Okay. So why do interviewer care so much about the algorithm and data structure? Because अगर आप data structure algorithm को जानते हैं तो it is a fundamental of any software development because you have to create algorithm. आपको problem को solve करना है. Problem को solve करने के लिए you have to create algorithm and implement it into different programming language. Whatever language you are using for the programming doesn't matter. Everywhere you have to create solution. You have to create solution. To create solution, you have to understand the problem and create algorithm to solve it. Okay. So it automatically demonstrate that you have a good problem solving ability. So you are given an interview, you are asked to perform something on a particular data structure. It means that you understand what to do, how to approach the problem, how to logically understand it and solve it. So it's all about your analytical skill. And obviously you are doing a high level and complicated programming, that it means that you are proficient in a particular language in which you are programming. You can write efficient code because algorithm and data structure is all about creating efficient and efficient code that is efficient in time and efficient in space also. So that is why data structure is considered to be essential for the any selection process. Okay. Just like think about big companies. Big companies, they have this structure, coding and a system design. You are asked to design a particular software scenario is given, and you will ask that you design a system for or design a whole software for that particular solution. Okay, so there are some topics which are considered to be very very important for the job interview as well as for your academics: linked list, single, doubly, stack, queues, binary tree, different type of trees, heaps, graph, shortest path, hashing. There are certain things which are also important, but these are the main focus apart from bit manipulation, graphs, flow, mean cut. Few of things are not studied in the paper of से डेटा स्ट्रक्चर. इसमें से कुछ चीजें आप आगे के पेपर में, जो लोगों ने कंप्यूटर साइंस पढ़ा होगा तो उनका एक और पेपर होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम करके, है ना, डीएसए के नाम से एक होता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, या डीए के नाम से होता है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, डीए के नाम से. तो वहां पर कुछ और एडवांस एल्गोरिथम सीखते हैं, डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम सीखते हैं. सो थोड़ा सा आगे बात कर रहे हैं कि और डिफरेंट टाइप के जो एल्गोरिदम होते हैं वो कैसे होते हैं. ठीक है. सो डेटा स्ट्रक्चर को आज थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में मैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा. देन वी विल टॉक अबाउट द इंस्टॉलेशन. ठीक है. और वी विल टॉक अबाउट द, पिछले दिन हमने बात की थी कि व्हाट आर द डिफरेंट लैंग्वेजेस जिसमें कि आप डेटा स्ट्रक्चर कर सकते हैं. प्रिफर्ड लैंग्वेज जो है, 4-5 लैंग्वेज जो ज़्यादा प्रिफर्ड होता है: सी, C++, जावा, पाइथन. सम पीपल आल्सो गो फॉर द जावास्क्रिप्ट, क्योंकि इसका भी आपके पास ऑप्शन होता है कुछ कंपनी में कि आप उसमें भी लिख लो. ठीक है. जावास्क्रिप्ट का भी काफ़ी यूज होता है प्रोग्रामिंग में. कंपनीज में जावास्क्रिप्ट का भी काफ़ी यूज होता है. अभी जो मेन जो वेब डिज़ाइनिंग के लिए जो मेन जो अभी फोकस है फ्रंट एंड का, बैक एंड का, वो जावास्क्रिप्ट है. ठीक है. नोड जेएस, उस तरह की चीज़ें जो है सर्वर साइड और बैक हैंड दोनों के लिए अवेलेबल हो गई हैं, फ्रंट एंड बैक हैंड के लिए. सो जावास्क्रिप्ट हैज आल्सो बिकम वेरी वेरी यूजफुल लैंग्वेज, वेरी मच यूज्ड लैंग्वेज हैज बिकम. सो वहाँ भी आप डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन देते हैं. तो डेटा स्ट्रक्चर को समझना इंपॉर्टेंट है. लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज में करें. सो आई विल टॉक अबाउट द स्ट्रेटजी कि कैसे आप डेटा स्ट्रक्चर को सीखेंगे. ठीक है. तो जिससे आप प्रोफिशिएंट बनेगा. व्हाट आर द वेज, बिकॉज ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि
कॉलेज में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, आपको साथ में लैंग्वेज भी पढ़ना होता है, डेटा स्ट्रक्चर भी साथ में पढ़ना होता है. You end up just memorizing the things. Really, why those codes are written, how things are being implemented, what things is being done, वो समझ में नहीं आता. तो आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज करके दे दिया जाएगा, यू विल नॉट इन ए पोजिशन टू सॉल्व इट. आपको समझ में नहीं आया क्या करना है. सपोज जैसे एक ट्री दे दिया जाए, तो बाइनरी सर्च ट्री में होता है कि किधर लेफ्ट में बड़ा होता है कि राइट में बड़ा होता है. आपको बोला जाएगा कि उसका मिरर बना दो, लेफ्ट वाले को राइट कर दो, राइट वाले को लेफ्ट कर दो. यू विल बी गिवन अ प्रॉब्लम दैट इज अ बिट यूनिक. तो अगर आप उसको प्रॉपरली समझते नहीं है, तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट, डिस्पाइट इट 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 इज इजी. जस्ट लाइक जो आपने किया है वही है, लेकिन थोड़ा चेंज किया हुआ है. तो प्रॉपरली डेटा स्ट्रक्चर को समझना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई विल टॉक अबाउट दैट कि कैसे, व्हाट आर द स्ट्रेटजी, कैसे आप उसको डिफरेंट जो अभी जो स्ट्रक्चर हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं उसको कैसे आप समझेंगे, कैसे आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, सो व्हाट इज द एल्गोरिथम एनालिसिस की मैं आज बात करूंगा कि जो डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें इंपॉर्टेंट होता है, कम्प्लेक्सिटी की बात होती है कि बिग ओ नोटेशंस वगैरह आपने पढ़ा होगा. तो यहाँ से बात करते हैं, तो बिग ओ नोटेशन ओमेगा थीटा नोटेशन होता है. तो इसमें अभी बहुत ज़्यादा नहीं जाने की ज़रूरत है, एकेडमिक्स वाली चीज़ें हैं अभी, लेकिन बस समझ लें कि जब भी आप बुक में पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर, तो बोलेगा कि हाँ भी ये ट्री में इंसर्शन का कॉम्प्लेक्सिटी इतना है, या ये सर्च का एल्गोरिथम है तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी इतना है. तो दो तरह की कॉम्प्लेक्सिटी की बात होती है. एक स्पेस की, कितना स्पेस की जरूरत पड़ रही है, टेम्पररी स्पेस की जरूरत हो रही, और दूसरा टाइम की. सपोज थिंक ऑफ एन अरे, अरे है 50 के लेंथ का, और आपको कोई आइटम सर्च करना है, तो कितना लूप चलाएंगे. तो सिंपल अगर आप सर्च करेंगे तो 50 लूप चलेगा, जितना आइटम है उतना आपको वन वन करके सर्च करना पड़ेगा. तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, एन हो गई, है ना. जितना आइटम है उतना ही आपको लूप चलाना पड़ रहा है. तो जितना ज्यादा लूप चला रहे हैं उतना ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है. ठीक है, तो ये नोटेशन होता है. ठीक है, बिग ओ नोटेशन में बोलते हैं कि अपर बाउंड मैक्सिमम इतना, जैसे अभी हमने कहा कि अरे है, और जिसमें एलिमेंट जितने होंगे हमारा लूप कितना चलेगा, उससे ज्यादा तो नहीं चलेगा, है ना, उतना तो चलेगा. ठीक है, और लेकिन अगर आपको अरे में सारे एलिमेंट को से अरेंज करना है, सॉर्ट करना है, तो कितना चलेगा, तो कितना चलेगा, एन इंटू एन माइनस 1/2. 50 है तो 50 इंटू 49/2, इतना टाइम्स आपका चलेगा मैक्सिमम. उससे कम भी हो सकता है मैक्सिमम. तो ये होता है बिग ओ नोटेशन, कि कितना लूप मैक्सिमम चलेगा, या अपर लिमिट होता है. ठीक है, सो बस इतने तक अभी आपको रखो. बिग ओ नोटेशन मीन्स अपर लिमिट, कि इससे ज्यादा नहीं. ठीक है, और एक नोटेशन जो होता है जिसको बोलते हैं ओमेगा, डाउन वाला, लोअर बाउंड, कि इससे कम नहीं, एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट इतना लूप तो चलेगा ही चलेगा. ठीक है, तो ये होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या नोटेशन का मामला. आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू इट, बट दिस इज व्हाट इट इज. ये होता क्या है वो मैं बात कर रहा हूँ. ग्रोथ की डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिदम, डिफरेंट टाइप के होते हैं. हम लोग आगे कुछ बनाएंगे, वो होते हैं डिवाइड एंड कंक्वेयर, डायनामिक प्रोग्रामिंग होती है, ग्रिडी एल्गोरिदम होते हैं. देयर आर इवन मोर, जो आप आगे अगर एकेडमिक्स में आपने किया होगा, तो आपने और ज्यादा टाइप पढ़ा होगा. ठीक है, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टुडे इनटू लॉट ऑफ थिंग्स. आज हमारा थोड़ा आइडिया है, आज हमें इंस्टॉलेशन करना है. और तो डेटा स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था प्रीवियस डे, कि व्हाट आर द यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. तो डेटा स्ट्रक्चर हमें जो हम बनाएंगे, स्टैक, क्यू, ट्री, लिंक लिस्ट, ग्राफ, हैश, ये बनाएंगे. कैसे बनाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. क्यू जो है अब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन हम क्या करेंगे, प्रोग्रामेटिकली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ये डेटा टाइप हमें लैंग्वेज में प्रोवाइड नहीं होता है, बट उसके प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं.
स्टैक, क्यू, ट्री, लिंक लिस्ट, सॉरी स्टैक, ट्री, क्यू, इनकी बात करें तो क्या इसका प्रोटोकॉल दिया हुआ है, प्रोटोकॉल दिया हुआ है, इंसर्ट कैसे होगा, डिलीट कैसे होगा, सर्च कैसे होगा, देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स आर गिवन, बट इम्प्लीमेंटेशन इज लेफ्ट अपॉन यू, ठीक है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट द abstract. What is abstract? Implementation is abstract. We will be implementing most of things using the linked list. We will see why. What are the different type of data structure? There are two basic type of data structure. पहला होता है linear structure, stack है, queue है, ये क्या है linear है, जहां पर डेटा one after another रखा हुआ है, ठीक है, ये हो गया linear data structure. दूसरा होता है non linear, one after another नहीं होता, there may be more than one connection there. तो ये ग्राफ है, ट्री है, एक्चुअली में ग्राफ भी एक टाइप ऑफ ट्री है, उसका इनहेंसमेंट है, तो वो क्या हो गया नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. तो देयर आर टू टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर एंड नॉन लीनियर. टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर अगर मैं से बोले तो हम बात कर रहे हैं इधर वाले की, ठीक है. इन डेटा स्ट्रक्चर जनरली वी स्टडी अबाउट दैट बिकॉज ये हमें बनाना है, और ये डेटा स्ट्रक्चर आपका लैंग्वेज प्रोवाइड करता है, प्रिमिटिव, डिपेंड ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, तो कुछ कुछ इसमें वेरिएशन होंगे, बट दे ऑल बिलोंग्स टू दिस. इंटीजर वाला नंबर होगा, फ्लोटिंग पॉइंट वाला नंबर होगा, कैरेक्टर वाला होगा, बुलियन होगा, इसी टाइप का होगा, चाहे किसी भी लैंग्वेज में जाएंगे, ठीक है. इंटीजर वाला का डिफरेंट वैरायटी हो सकता है, ठीक है. फ्लोट का जैसे सिंपल फ्लोट और डबल होता है सी में, साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना. कुछ लैंग्वेज में 64 बिट 24 बिट के लिए अलग अलग टाइप होता है, ठीक है. कुछ लैंग्वेज में कैर भी होगा और स्ट्रिंग भी होगा, कुछ लैंग्वेज में सिर्फ कैर होगा, जैसे सी में सिर्फ कैर होता है, स्ट्रिंग नहीं होता है, ठीक है. बट दे ऑल बिलोंग टू दिस फोर कैटेगरीज, ठीक है. और ये है, ये आपको इंप्लीमेंट करना है. सो दिस यू कैन इंप्लीमेंट इन एनी लैंग्वेज, जहां भी आप डेटा स्ट्रक्चर करेंगे ये सारी चीजें आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है. आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिफरेंस ऑफ इट, क्योंकि ये हमें आगे पढ़ना है. तो डेटा स्ट्रक्चर पर हमें जो कॉमन ऑपरेशन करना सीखना होता है वो दीज आर द थिंग्स. हमें एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को क्रिएट करना है, एलिमेंट को इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, सर्च करना है, सॉर्ट करना है, एंड देयर आर वेरियस एल्गोरिदम to insert. There are various way to delete, various way to search. हम different type के search algorithm देखेंगे, binary search, different type का search, for example, sort, different type का sorting है, cell sort, merge sort, quick sort, different type of search algorithm. तो ये जो ऑपरेशन है, अलग अलग ऑपरेशन के लिए तरह तरह के एल्गोरिदम है, और सर्टेन एल्गोरिदम जो है किसी पर्टिकुलर डेटा सेट पर ही पॉसिबल होता है. जैसे ट्री है, तो ट्री में जो अगर सारे एलिमेंट को प्रिंट करना है उसको बोलते हैं ट्रैवर्सल, वो अलग ढंग से होगा. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ट्रैवर्सल अलग ढंग से होगा. ओके, नेक्स्ट थिंग जस्ट वांट टू, ये अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हमने पहले बात कर लिया था, कॉमन एडीटी की हमने बात कर ली, लीनियर की बात कर ली, स्टैक की. नाउ जस्ट और कुछ प्रैक्टिकल चीजों पर आते हैं कि व्हाट वी वांट टू डू, हमें इनको इम्प्लीमेंट करना है, हमें इनको करना है, किस लैंग्वेज में करें. आई विल रिपीट कि डेटा स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझना है तो पहले ये फंडामेंटल आपको समझ में आ जानी चाहिए. ये जो ऑपरेशंस की बात की और डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं, जो अभी मैं बात कर रहा था, ये इसका अच्छा समझ हो जाना चाहिए. तो कौन सी लैंग्वेज लेंगे? प्रीवियस डे आर टॉक अबाउट कि आप सी यूज कर सकते हैं, सी प्लस प्लस यूज कर सकते हैं, आप जावा यूज कर सकते हैं. मैं आपको प्रैक्टिकली सबका कुछ एग्जांपल पहले दिखाता हूँ, फिर मैं इंस्टॉलेशन पर आऊंगा, ठीक है. सो जस्ट वांट टू सी सम इम्प्लीमेंटेशन इज डिफरेंट लैंग्वेजेज, ठीक है. पाइथन, पाइथन में अवेलेबल है. चलिए डी आई आर करके देखता हूँ, डी आई आर एस्ट्रिक डॉट, स्पेस रह गया था, एस्ट्रिक डॉट. सो आप पहले सी की देख लें, सबसे पहले सी का देख लेता हूँ.
सी का तो हमारे पास बहुत अधिक बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर नहीं है। चलो सी प्लस प्लस में ही देखते हैं कि सी प्लस प्लस में सपोज क्यू कैसे बनाते हैं या स्टैक कैसे बनाते हैं। वेक्टर वहाँ पर है, फ्यू थिंग्स विल नॉट रन हियर, है ना। कुछ चीज़ों को रन करने के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। जैसे वेक्टर एससीएल है, तो अगर हमने सी प्लस प्लस 11 का सिंटेक्स लगा दिया तो हमें अलग ढंग से उसको रन करना पड़ेगा। ठीक है, आई जस्ट वांट टू, जस्ट मिनट। ओके, आई जस्ट वांट टू शो यू सम कोड फर्स्ट। किस लैंग्वेज का पहले मैं शो कर दूं, लिंक लिस्ट। ये तो पाइथन में है। आई हैव डेटा स्ट्रक्चर इन ऑल द लैंग्वेजेस हियर। चलो सीपीपी का है, स्टैक। सो यू सी हियर कि यहाँ पर क्या है, स्टैक ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइंड है, स्टैक ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, और हमारे पास फंक्शन बने हुए हैं। हमने क्या किया, स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाया है और उसमें लेकर पुश कर दे रहे हैं। ठीक है, दिस इज ये एसटीएल का मामला यहाँ पर है। स्टैक इज ऑलरेडी देयर, आपको स्टैक मैनुअली बनाना नहीं है। अगर आप मैनुअली बनाना है तो फिर उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, फिर वो क्लास एंड टेम्पलेट का यूज करना होगा। एसटीएल में इट इज देयर, आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि कम्पिटिटिव कोडिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पर हम क्या सीखते हैं, कम्पिटिटिव कोडिंग सीखते हैं। वहां पर क्या रहता है, आपको काम करना होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि आपने क्या करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है। तो सब चीज आप फ्रॉम द बिगनिंग करेंगे तो यू डोंट हैव टाइम और दैट मच स्पेस टू सॉल्व इट। तो आपने क्या करना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें रेडीमेड थिंग्स को यूज करना होगा। दैट इज वाई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जैसी चीजों के लिए सी प्लस प्लस यूज किया जाता है, क्योंकि हमें फ्रॉम द बिगनिंग नहीं बनानी है, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हमें पहले स्टैक बनाएंगे, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो हमें हमें क्यू चाहिए, हमें स्टैक चाहिए, हमें डायरेक्टली चाहिए और उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो इसलिए आई आई होप सभी ने सुना होगा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में। तो वहां पर क्या होता है, आप फ्रॉम द बिगिनिंग कुछ नहीं कर रहे होते हैं, आपको प्रॉब्लम मिलता है, उसको आपको सॉल्व करना होता है। तो वहां पर आपको स्टैक की जरूरत पड़ेगी, क्यू की जरूरत पड़ेगी, हैशिंग की जरूरत पड़ेगी, है ना। उसका यूज करके आप डायरेक्टली उसको बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, हाँ इंस्टॉलेशन जस्ट 5 मिनट के अंदर मैं बता रहा हूँ, इंस्टॉलेशन आज मैं करके बताऊंगा। ठीक है, बी श्योर, ये चीजें समझ लेनी है ना। इंस्टॉलेशन की चिंता नहीं कीजिए, इंस्टॉलेशन मैं आज करा दे रहा हूँ। ठीक है, पहले ये समझना है कि वट इंस्टॉल करके आपको करना क्या है ना। राइट, सो लैंग्वेज के बारे में अच्छी तरह से समझ लें कि सीखने के लिए हमें क्या करना है। और सी प्लस प्लस करने पर और जावा करने पर आप किस लेवल पर काम करेंगे, या पाइथन करने पर और सी करने पर आप किस लेवल पर काम करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वेरी फ्रैंकली एंड वेरी सिंसियरली मैं ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट कि आप, आपको मैं पुश करूं कि आप इसी लैंग्वेज में कर लो। आई एम जस्ट टेलिंग यू telling you the real situation so that it will be useful to for you to understand कि हमें किस में करना चाहिए, क्या करना चाहिए। because I'm very very frank कि 10 days is not enough or 10 hours is not enough at all for the uh, understanding the data structure very very clear। आपको भी पता होगा। so very clearly मैं ये बात बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव है कि डेटा स्ट्रक्चर अच्छी तरह से है क्या, समझ में आ जाए आपको, है ना। किस लैंग्वेज में करना है, आपको क्या करना है, ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कोई एक लैंग्वेज पकड़ के हमने सारा इम्प्लीमेंटेशन करना कर लिया तो और डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है वो समझ भी नहीं आ रहा है, होता क्या है, क्यों कर रहे हैं, आगे हमें उसका यूज क्या है, तो कौन सा यूज करना है,
अच्छा रहेगा, इंटरव्यू के प्रोसेस से क्या अच्छा रहेगा, एकेडमिक्स के लिए क्या अच्छा रहेगा। यू अगर ये जानती नहीं है तो फिर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पकड़कर हमने डेटा स्ट्रक्चर सीख लिया तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, है ना। सो और व्हेन यू गो टू सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, अब कैंपस में जाएंगे तो वहाँ अलग तरह का प्रॉब्लम है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग में अलग तरह का प्रॉब्लम है। तो अपने ऑब्जेक्टिव को समझ के आपको डिसाइड करना है कि आपने क्या, किस लैंग्वेज में या किस पार्ट को आपको करना है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव हियर। मैं सारे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मैं आपको पाइथन भी बता रहा हूँ, आपको मैं सी प्लस प्लस में भी अभी एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको जावा में भी एग्जांपल दिखाऊंगा और आपको सी में भी दिखाऊंगा, ठीक है। एंड देन आपसे बात करूंगा कि आपको किस में करना चाहिए, है ना, माय ओपिनियन। सो हियर यू सी प्लस प्लस में क्या है, स्टैक इज ऑलरेडी देयर, हमने स्टैक को कॉल किया है ना, और हम स्टैक के साथ हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम पुश कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, थिंग हमें फ्रॉम द बिगिनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें बिगिनिंग करना पड़ेगा। तो सी प्लस प्लस का बहुत अच्छा मुझे नॉलेज होना चाहिए, है ना, जो मैंने पिछले दिन लिस्ट किया कि क्या होना चाहिए, तब आप अपना स्टैक बनाएंगे। आपको क्या करना होगा, क्लास और टेम्पलेट अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अंटिल यू आर वेरी वेरी गुड एट सी प्लस प्लस यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट फ्रॉम द स्क्रैच। ओके, जस्ट टेक फ्यू मोर एग्जांपल, मैं इसलिए दिखा रहा हूं आपको, है ना। हम्म, या क्यू क्यू देख लें कैसा बनेगा, और मैं एसटीएल का भी एग्जांपल अभी दिखाता हूँ, ठीक है। सो ये देख लो, ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि क्यू, इट इज ऑलरेडी देयर, है ना। हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, मैंने ऊपर में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का यूज किया, उसमें क्यू होता है, ठीक है। तो उसका क्यू का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने क्यू बनाया है, उसके अंदर पुश करने का, पॉप करने का, जो भी वहाँ पर हमारे पास जो प्रोटोकॉल डिफाइन है वो हम वहाँ पर कर सकते हैं। फंक्शन है, फ्रंट में डालना है, बैक में डालना है, बैक, ठीक है। तो फ्रंट से हम पुश करना चाहते हैं, बैक से, है ना, किधर से शो करना चाहते हैं, तो सारे फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी बनते हैं, ठीक है। बट यू वांट टू क्रिएट द क्यू, तो सी प्लस प्लस में आई टोल्ड यू हैव टू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज प्रिटी वेल, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आना चाहिए वो सारी चीजें, ठीक है। एक और मैं दिखा देता हूँ, ये एसटीएल का, दिस आर द एग्जांपल ऑफ एसटीएल, है ना। यू सी इट इज कॉल्ड द फंक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एसटीएल में आपको सीखना पड़ेगा फंक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो वी आर क्रिएटिंग, अगर जिन्होंने बेसिक अच्छा से सी प्लस प्लस नहीं समझा होगा तो दोज थिंग्स ये समझ में नहीं आएगी व्हाट वी आर डूइंग। यू सी द सिंटेक्स इज वेरी डिफरेंट हियर, है ना। फंक्शन ऑब्जेक्ट एफ बना रहे हैं, ठीक है। फंक्शन ऑब्जेक्ट क्या है, एडिशन के लिए हम यहाँ पर कैसे भेज रहे हैं, फंक्शन ऑब्जेक्ट नाम देख लो, क्या फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट, यहाँ कीवर्ड लग रही है यहाँ पर ऑपरेटर। सो इफ यू गो up in the C++, things are not so simple. It's very complicated. But yes, everyone can learn it. Okay. Now, just think if you want to do it in say Python में करना है तो Python में क्यों बनाते हैं, कैसे बनेगा, मैं रन करके भी दिखाऊंगा, है ना। चलो आइडल में करके रन करके दिखाता हूँ। okay. What I am going to do is not easily available at one place. मैं C, Python, C++ सब में कंपैरेटिव में चीजों को दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो यू सी वी आर क्रिएटिंग अ क्यू क्लास, मैं अपना क्यू का क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। वी आर क्रिएटिंग अ क्यू क्लास एंड वी आर डिफाइनिंग आवर methods and things। सी में भी ऐसा करेंगे, ये क्या है, फ्रॉम द बिगिनिंग आप काम कर रहे हैं, आप एक डी क्यू बना रहे हैं, ठीक है। तो वी हैव क्रिएटेड आवर ओन क्लास, हमने अपना क्यू बना लिया, उसके अंदर हमने अपना डेटा बनाया इंटरनली, तो यहाँ पर लिस्टिंग यूज हो रहा है, बट वी आर क्रिएटिंग आवर क्लास। जस्ट टेक वन मोर एग्जांपल, मैं इसको रन भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दिखा देता हूँ। जस्ट मैं इसमें स्टैक का भी रन करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं अभी इंस्टॉलेशन करूंगा, ठीक है, आइडल 3 में।
So I am creating a stack. Just I am running it. Just say 1 for push, 2 for pop, 3 for length, 4 for pick, 5 for quit. So पहले से मैं int करता हूँ, कितना पुश करना है 22. व्हाट आई वांट, अब फिर से पुश करता हूँ 33, फिर एक पुश करता हूँ 55. फिर अब क्या करना चाहते हैं, आई वांट टू सी लेंथ 3. लेंथ अभी कितना है 3 है. मैं पॉप करना चाहता हूँ 2. थोड़ा सा स्क्रीन छोटा दिख रहा होगा, आई हो मैं कर दे रहा हूँ उसको, फॉन्ट का साइज. लेट मी चेक इट. ठीक है. आई जस्ट वांट टू डू पॉप अगेन. हाँ 2. सो क्या पॉप हो गया 33 पॉप हो गया. फिर अभी लेंथ देख लेता हूँ कि कितना हो गया. सो डू 3. लेंथ अभी इतना बन रह गया. ठीक है, मैं एक बार और पॉप करता हूँ 2. व्हाट इज द लेंथ नाउ, हमारा लेंथ कितना है 0 हो गया. फिर मैं पॉप करता हूँ 2. वेदर ये बोलेगा स्टैक इज एम्प्टी है. ठीक है. सो वी हैव टू डू आवर कोडिंग हियर, है ना, पाइथन में करना है तो ऐसा. नाउ जावा का शो करता हूँ. जावा में कैसे, तो कोड आपने देखा थोड़ा थोड़ा, है ना, ये आपको इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है. जावा में सो जावा में लिंक लिस्ट दिखता, लिंक लिस्ट या क्यू बनाते हैं वहां पर, क्यों ही देखते हैं. नॉट इट इज क्लास, क्लास नहीं, हमें जावा फाइल चाहिए. तो यहाँ देखो जावा में क्या है. जावा में देखिए कि यहाँ पर हमने यूटिल के अंदर में यूटिल के अंदर में हमने क्यू को कॉल किया है. ठीक है. इट इज देयर, लिंक लिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है. ठीक है. आई फाउंड, जिन्होंने जावा किया होगा वो देख रहे होंगे, है ना, उन्हें पता है कि यहाँ पर ऑलरेडी लिंक लिस्ट बना होता है, अरे लिस्ट बना होता है, हैश मैप बना होता है. ठीक है. उसको इंप्लीमेंट करना सीखना होता है. यानी तो आप अपना भी बना सकते हैं, वो भी मैं दिखा रहा हूँ. ठीक है. सो बिफोर गोइंग टू, मैंने थोड़ा थोड़ा कोड दिखाया डिफरेंट लैंग्वेज का. अब जरा से इंस्टॉलेशन की बात करते हैं कि हाउ हमें करना है सी एन सी प्लस प्लस में, तो हमें कौन सा सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी. ओके. आई होप थोड़ा सा जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट में दिखा रहा था सभी लैंग्वेज में, है ना, थोड़ा थोड़ा, है ना. आई डोंट अंडरस्टैंड कि किसी को कोई कोड उतना समझ में आया होगा. दैट वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव एट ऑल. अस जस्ट वांट फॉर द क्यूरियोसिटी ऑफ ऑल कि डिफरेंट लैंग्वेज में कोड कैसे लिखा होता है ना. दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट हियर. सो इंस्टॉलेशन के लिए जो सबसे जरूरी आजकल, जो सबसे पॉपुलर जो इंस्टॉलर है जिसकी जरूरत अब हो गई है, सभी यूज करते हैं, क्या जरूरत कर है जिसको कि सभी इंस्टॉल करते हैं, वो है विजुअल स्टूडियो कोड, है ना. विजुअल स्टूडियो कोड. अब विजुअल स्टूडियो कोड में क्या करना होता है, विजुअल स्टूडियो कोड. ठीक है. एट प्रेजेंट इट इज बिकमिंग द वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड कोड एडिटर. सबसे ज्यादा प्रिफर, क्योंकि इसके अंदर एक्सटेंशन का जो एक एडवांटेज है, वी कैन ऐड अ लॉट ऑफ एक्सटेंशन. कोई भी लैंग्वेज में यहाँ पर कोड कर सकते हैं. तरह तरह के एक्सटेंशन अवेलेबल है. इवन हम गिटहब के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, डॉकर बना के साथ लॉट ऑफ, इवन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. सो वी हैव सो मच फैसिलिटी एट वन प्लेस. दैट इज व्हाई इट हैज बिकम सो सो पॉपुलर, है ना. तो आप यहाँ से देख लो कि आपको इंस्टॉलेशन यहाँ से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं. इट विल गो विंडोज 64. अभी तो अभी सारा वर्जन है. ये सभी लैंग्वेज के लिए अवेलेबल, सॉरी ऑपरेटिंग के लिए अवेलेबल है. मैक के लिए अवेलेबल है, लाइनक्स के लिए भी अवेलेबल है. ठीक है. तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए. अदरवाइज आप सिंपली विजुअल स्टूडियो कोड लिखकर आप डाउनलोड क्लिक करेंगे, यहाँ से भी डायरेक्टली आपका डाउनलोड आ जाएगा. ठीक है. आप अपने वर्जन के हिसाब से इसको डाउनलोड करेंगे. ठीक है. मैं मेरे पास डाउनलोडेड है, मैं रन करके दिखाता हूँ कैसे इसको इंस्टॉल करना है. ठीक है. इसके पहले आपको एक काम और कर लेना चाहिए कि सपोज इसमें कंपाइलर नहीं होता.
ठीक है, कोड एडिटर है, एवरी फैसिलिटी आर देयर, बट कंपाइलर इज नॉट देयर। ठीक है, हमें C++ में करना है, तो कौन सी लाइब्रेरी हमें चाहिए होगी? ठीक है, कौन सी लाइब्रेरी हम यूज करें कि हमारा C++ के सारे डेटा स्ट्रक्चर के कोड हो जाए, HTML भी उसमें रन करे, है ना, एवरीथिंग। तो कैसे होगा? सॉरी। तो अ, किसी के पास विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल्ड है? एनीवन? जस्ट पुट इन द चैट। किसी के पास इंस्टॉल्ड है पहले? नो? ओके। सो विजुअल स्टूडियो कोड का यहाँ पर दो वर्जन होता है। ठीक है, मेरे पास एक वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं ऑन करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मैंने अपने विजुअल स्टूडियो कोड को पूरी तरह से पाइथन के लिए कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। ठीक है, इसमें C++ डायरेक्टली ऐसे चलेगा नहीं कि यहाँ से रन करके करेंगे और चलेगा। ये हमने पूरी तरह से पाइथन के लिए डिफाइन कर दिया है इसको, हाँ, पाइथन के डेटा साइंस का कोड लिखने के लिए। ठीक है, सो वी आर डूइंग, ये जो पाइथन का नोटबुक भी यहाँ से खुल जाता है। ठीक है, तो चूंकि इंस्टॉल्ड है, सो आई विल बी इंस्टॉलिंग इट अगेन। मैं फिर से इंस्टॉल करता हूँ, लेकिन ये वर्जन हम इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन इंस्टॉल करूंगा। सो आई विल बी इंस्टॉलिंग विजुअल स्टूडियो कोड का एक और वर्जन होता है, इनसाइडर वर्जन। मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। आपको जो यहाँ पर सामने दिख रहा है वही इंस्टॉल करना है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट इंस्टॉल कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज मेरा ये वाला ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसके दो वर्जन इंस्टॉल नहीं हो सकते, इसलिए मैं ये उसका एक थोड़ा सा वेरिएशन वाला वर्जन है, उसको मैं यहाँ से रन करूंगा। ठीक है, इसके पहले, हाँ, आई रिपीट कि इसके पहले आपको एक और काम कर लेना है, नहीं तो आपको पाथ देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए है कि आप C++ का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करेंगे। सो मीनवाइल जब तक ये स्टार्ट शुरू हो रहा है, मैं वो बता देता हूँ। अभी रुक जा रहा हूँ। ठीक है, पहले यहाँ पर करेंगे आगे कि हमें C++ का कौन सा कंपाइलर चाहिए। ठीक है, C++ का कंपाइलर आपको चाहिए MinGW। ठीक है, एवरीवन नोट इट। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? MinGW की। पहला साइट minjw.org खुलता है। ठीक है, समटाइम जैसे मैं आज देख रहा हूँ कि ये बेस वाली जो साइट है वो WW6 वाली नॉट सिक्योर है, HTTPS नहीं है, इसलिए शायद मेरा ब्राउजर उसको खुलने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसका एक अलग जगह पर ये सेम थिंग अवेलेबल है। तो MinGW.org नहीं करके हम MinGW का उस प्लेस पर जहां पर इसका बाइनरी रहता है, उस प्लेस पर जाके इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द साइट MinGW-64.org। वहां पर डाउनलोड पर जाइए। थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको डाउनलोड क्या करना है। यहाँ पर जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, समझ में नहीं आएगा कि कौन सा ऑप्शन आपको डाउनलोड करना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है कि इसके बिल्कुल लास्ट में जाओगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सोर्सेज, सोर्स फोर्ज पर जाने का। ठीक है, तो आप उसके सोर्स फोर्ज के साइट पर चले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर से डाउनलोड भी नहीं जाइए, आप कहाँ चले जाइए, एक विंडो वाले पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ ले आएगा, विनलिब, है ना, विनलिब पर ले आएगा। तो आप सोर्स फोर्ज वाले पर जाओगे तो इट विल ब्रिंग यू हियर। ठीक है, आई रिपीट, क्या करना है आपको? क्या करना है? यहां पर में से नहीं डाउनलोड करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर विंडो वाला किसी को सेलेक्ट करोगे तो दूसरे साइट पर ले आएगा, है ना, ये देखिए, है ना, इस पर क्लिक करोगे तो, इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ ले आएगा। ठीक है, GDB, GNU, वाइसम, यहाँ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या डाउनलोड किया जाए। सो बेटर यू गो टू द इसके सोर्स पर जाइए। तो मैं वो साइट तो अपने सामने, आपके सामने ओपन कर दिया हूँ। यू ऑल नोट इट।
मैंने बंद नहीं ना कर दिया। या सो गो टू sourceforce.net प्रोजेक्ट MinGW W64 फाइल्स। ठीक है, अब मैं चैट में इसको पेस्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, फॉर एवरीबॉडी। यू कैन कॉपी इट फ्रॉम देयर। आपने कहा जाना है, यहां पर जाना है, विश्व MinGW W64। यहाँ पर आपको यहाँ पर डायरेक्टली मिल जाएगा डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, ओनली 16 MB, जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम हियर, इट्स वेरी स्मॉल। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग data structure is at the time interesting as at the time जहाँ पर इंस्टॉल करना चाहिए, मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये मेरा पिछला जहाँ पर जा रहा था वहाँ पर चला जा रहा है। आई एम पुटिंग इट ऑन द डेस्कटॉप, मेरा ऑलरेडी है ना, तो मैं किसी दूसरी जगह पर ले जाकर इसको डाउनलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक ऐसा वर्जन भी मिलता है जिसमें आप सिंपली क्या करेंगे, और फाइल को अनजिप करके कहीं पर डाल देंगे। ठीक है, सो मेरा डाउनलोड हो गया। आई थिंक 16 MB इज वेरी स्मॉल फाइल, सो इन फोल्डर दिस इज इंस्टॉल्ड। ये आ गया, डाउनलोडर आ गया, इंस्टॉल नहीं हुआ। जस्ट एक्सट्रैक्ट कर लें। देर आर अदर वे ऑल्सो, आई मस्ट टेल यू, देर आर अदर वे ऑल्सो, और भी तरीका है, लेकिन वो साइट्स जो होता है समटाइम ओपन नहीं होता है, जो बताते हैं कि यहाँ पर चला जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉलर कर लो, समटाइम वो साइट जो है ओपन नहीं होता है। ठीक है, जैसा अभी मेरा देखे कि HTTPS नहीं होने के कारण ये ओपन नहीं हुआ। ठीक है, मैं एक और तरीका भी आप बताता हूँ, पहले ये बता दूं पहले। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सो वी हैव हियर, इसको हमें क्या करना है कि एक मिनट, ये मेरा स्क्रीन में थोड़ा सा बैक हो जा रहा है ना। सारा इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, कहाँ पर ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लिब है ना, इसके अंदर एक जगह पर आपको बिन मिलेगा, है ना। आपने ये पूरा फाइल को क्या करना है कि आ, इसको अपने पाथ में डाल देना है। ठीक है, ये वाला 64 वाला। हेडर्स लाइब्रेरी एवरीथिंग इज हियर इन द टूल्स। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको प्रॉब्लम होता है, समटाइम लोग बोलेंगे कि इतना मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं एक दूसरा सिंपल तरीका दिखाता हूँ। यू जस्ट गो टू अ साइट कोड ब्लॉक्स। ठीक है, इसके अंदर MinGW होता है ना, थोड़ा सा ये बड़े फाइल होती है। ठीक है, तो आप इसमें आप अगर करते हैं तो आपको आईडी भी मिल जाता है, और ये बोला कि ये तो ये मुझे यूज करना है, ये तो ये पूरा काम आप क्यों इंस्टॉल करेंगे। इसमें एक एडवांटेज है कि अगर आप इसको इंस्टॉल कर लेते हो, ठीक है, तो हम इसके MinGW को भी यूज कर सकते हैं। डेट इज व्हाट आई डू। मेरे पास क्या है, ये इंस्टॉल्ड है, लेकिन इसके अंदर जस्ट थिंक, मैं बहुत क्लियरली बात बता रहा हूँ, क्योंकि जैसा बहुत सारे साइट में लिखा रहता है कि ये डाउनलोड कर लो, ये यहाँ कर लो, समटाइम वो वर्क नहीं करता है। एट द टाइम कभी वर्क करता है, कभी वर्क नहीं करता है। आई एम टेकिंग इज वेरी वेरी फ्रैंकली। ठीक है, तो क्या कर लीजिए, मैं एक बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ, कोड ब्लॉक को डाउनलोड कर लीजिए, देन उसके बाद अपने इसको इंस्टॉल कर लीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, नथिंग एल्स। आपको यहाँ प्रोग्राम नहीं करना है, ये थोड़ा स्लो चलता है। तो आपने क्या करना है कि फिर वहां पर जाइए, मैं यहाँ से स्टार्ट कर दे रहा हूँ। मैं इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ कि मेरा अभी क्या हो जाएगा कि सब कुछ मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो सारे जो है ना एक के ऊपर एक हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ।
इसका फाइल लोकेशन पर मैं जा रहा हूँ, जस्ट थिंक वेरी केयरफुली, है ना। इसका फाइल लोकेशन पर जा रहा हूँ, यहाँ है, और यहाँ देखिए मिन GW इसके साथ में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें जो आई थिंक सबको स्क्रीन दिख रहा होगा, है ना। इसके बिन में जाइए, है ना, और ये जो पाथ है देखिए यहाँ पर C++ का कंपाइलर है, CPP कंपाइलर है, G++ करके भी एक CPP का कंपाइलर है, सी का ये GCC कंपाइलर है। ये सारे आपको यहाँ से मिल जाते हैं। इसको आप पाथ को कॉपी कीजिए, गो टू योर सिस्टम में सिस्टम वेरिएबल चाहिए, ठीक है, इन्वायरमेंटल वेरिएबल। यहाँ पर सिर्फ टाइप कर लो env, टाइप करोगे तो env टाइप करोगे तो एडिट इन्वेंटर वेरिएबल फॉर योर अकाउंट और फॉर द सिस्टम, इसको आप क्लिक कर लीजिए, ओपन हो जाएगा। इन्वायरमेंटल वेरिएबल को क्लिक कर लीजिए और इसके पाथ में जाइए, हाँ सारे सारे यूजर के लिए पाथ में जाइए, एडिट कीजिए, और अभी जो हमने पाथ कॉपी किया हुआ है उसको क्या करना है, न्यू करके पेस्ट कर देना है। मेरा ऑलरेडी पेस्ट है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मेरा ऑलरेडी पेस्ट है, ये हमारा पेस्ट हो गया, ठीक है। सिंपल, पाथ में क्या आ गया, मिन ZW आ गया, वहां से नहीं हो रहा था तो यहाँ से बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। मैंने भी कई बार कर दिया है, ठीक है। सो ये इसको क्या कर देना है, न्यू में क्लिक करके पेस्ट कर देना है, ये आपका पाथ पर यहाँ आ गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए और वहां पर आप लिखिए GCC, ओनली GCC लिखो, तो ये बोलेगा फटाल एरर, नो इनपुट फाइल फाउंड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इंस्टॉलेशन है, आपको फाइल नहीं दिया कंपाइल करने के लिए, इसलिए बोला कि कोई फाइल नहीं मिला है। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं, GCC रिपीट, आप लिखे GCC माइनस माइनस वर्जन, ठीक है, तो आपको उसका वर्जन बता देगा। ये सी प्रोग्रामिंग के लिए, और C++ के लिए GCC की जगह आप लिखें G++, ठीक है, माइनस माइनस वर्जन, ये आ गया, ठीक है। दोनों आपको साथ में मिल जाता है, ठीक है। अब आप जहां चाहे वहां कोड करें, तो चूंकि इसको हमने इन्वायरमेंटल वेरिएबल में डाल दिया है, तो फिर आप जो है, फिर जो ये सेटअप आगे आप चलाते, नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर लेना, कुछ इसमें होता नहीं है ना। एक्सेप्ट, फिर बताता हूँ यहाँ क्या करना है, आपने पाथ दे देना है। जनरली सी के प्रोग्राम और C++ के प्रोग्राम जो है आप सी पर नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो EXE बनता है और विंडो उसको ब्लॉक करता है समटाइम, जो आपका जो एंटीवायरस है जो है। सो प्रीफर नॉट टू इंस्टॉल इट ऑन योर C ड्राइव, इंस्टॉल आउट सम अदर ड्राइव, है ना, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए, क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन चाहते हैं, है ना, विंडो का एक्सप्लोरर में आ जाए, राइट क्लिक में आ जाए, है ना, तो आप कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जरूर ऑन रखिए कि ऐड टू पाथ कर दीजिए, ठीक है। हमें आइकन चाहिए, मैंने ये भी लगा दिया है, अगर नहीं चाहिए नहीं लगाइए, ये भी आप ऑन कर लीजिए कि राइट क्लिक के मेनू में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंस्टॉल, ठीक है, ज्यादा उसमें ऑप्शन नहीं है, बस ये ध्यान देना यू मस्ट ऐड टू पाथ, ठीक है, वो जरूर चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। सो इन बिटवीन मेरा दूसरा इंस्टॉलर है, यहाँ पर है। यहाँ पर क्या करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। आप जाएं, वो एक फोल्डर बना लो, सो यू क्रिएट अ फोल्डर, एज्यूम कर लो कि आपका इंस्टॉल हो गया है, ठीक है, एज्यूम कर लो कि आपका इंस्टॉल हो गया है। वेट, जस्ट वेट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, ये देखिए यहाँ एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन को क्लिक कीजिए, ठीक है। आई होप एवरीवन इज गेटिंग इट। किसको क्लिक करना है, सबसे पहले एक्सटेंशन को क्लिक करना है, ठीक है। यहां पर C++ के एक्सटेंशन दिख रहे हैं, है ना।
समझ गए? आई रिपीट, मैंने बंद कर दिया। जब आपने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल ये इसको स्टार्ट किया तो यहाँ पर अभी कोड नहीं लिखना है, सबसे पहले जाना है सी प्लस प्लस के एक्सटेंशन, हमें कुछ चाहिए, वो चाहिए है ना। वो क्या, कौन कौन से एक्सटेंशन चाहिए, क्लिक इट हियर। तो यहाँ पर ढेर सारे एक्सटेंशन मिलेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसमें पहला वाला जो एक्सटेंशन है जो ग्रीन किया हुआ है ना, माइक्रोसॉफ्ट का अपना है। इसमें आपको इंटेलिजेंस मिलेगा, इंटेलिजेंस मीन्स कोड कंप्लीशन मिल जाएगा। तो आप इसे पहले क्लिक कर दीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। इंस्टॉल हो गया। इसके अलावा एक और ये कर लीजिए, दिस इज सी प्लस प्लस रनर, ठीक है। ये सेकंड वाला देना कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस वन अगर आपने कर लिया, इंटेलिजेंस एंड एवरीथिंग हियर, देन गो फॉर दिस टू, ओके। सेकंड वन मेरा में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। ये दो आप इंस्टॉल कर लें। इफ यू वांट मोर यू कैन गो फॉर द एक्सटेंशन पैक एंड इवन गो फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ थीम्स आल्सो, ठीक है। कलर थीम एंड एवरीथिंग आएगा। सो इम्पॉर्टेंट पहला है ये, और ये आ जाना चाहिए, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, आई विल रिपीट, है ना, मैं उसको फिर से बताऊंगा। अब क्या करना है, वर्क स्पेस बनाना है। देर आर वेरियस वे, लेकिन मैं अपना तरीका बता रहा हूं दैट वर्क्स। क्रिएट अ फोल्डर, आप एक फोल्डर बना लो, ठीक है। डेस्कटॉप पर बना लो या जहां भी बना लो, यू क्रिएट ए फोल्डर। आप एक फोल्डर बना लीजिए। सपोज मैंने एक फोल्डर बना लिया है, एक नया फोल्डर बना लीजिए। नाम रख देते हैं उसका, मेरा थोड़ा सा छुप जा रहा है, रीनेम कर देता हूँ। इसका मैं नाम रख दे रहा हूँ सी प्रॉग्स, ठीक है। वेर एवर यू वांट यू क्रिएट इट। मेरा डेस्कटॉप सी ड्राइव नहीं है, मेरा डेस्कटॉप एच ड्राइव है ना। इसके अंदर आप डॉस प्रॉम्प्ट से चले जाइए, ठीक है। तो मैं ऐसे करके इस पर जा रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू क्रिएट वन मोर, क्योंकि मेरा बहुत सारा ओपन है। दिस इज माय पाथ, मेरा डेस्कटॉप जो है एच है ना। ओके, नाउ राइट डॉट कोड। आपने यहाँ पर लिखना है, डायरेक्टरी बना ली है, यहाँ पर हम अपनी डायरेक्टरी के बारे में श्योर हो जाइए। एंड मेरा इंस्टॉलेशन अगर पूरा नहीं होगा तो फिर वो काम नहीं करेगा, है ना। सो यू हैव टू राइट डॉट कोड। मैं बोला ना कि समटाइम काम नहीं करता, मैं ऐसे काम ऑलरेडी कर चुका हूँ। यू हैव टू राइट डॉट कोड। ये शॉर्टकट तरीका, अगर ये काम करे तो अच्छी बात है, नहीं काम करे तो मैं दूसरा टेक्निक बताऊंगा, है ना। इट समटाइम इट वर्क्स डायरेक्टली, है ना। इट इज़ नॉट टेकिंग, क्योंकि मेरा इंस्टॉलेशन डबल है, कुछ कुछ प्रॉब्लम है और मैंने ऑलरेडी किया हुआ भी है। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट वर्किंग। अगर ऐसा नहीं वर्किंग करे तो जस्ट कम बैक, अपने इसमें चले आओ। आप यहाँ पर इस एक्सटेंशन को बंद कर दीजिए, गो टू फाइल, और यहाँ पर ओपन फाइल ने के जाकर के आपने ओपन करना है ओपन वर्क स्पेस फ्रॉम द फाइल एंड ओपन फोल्डर, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि ये दूसरे कोड ब्लॉक है दूसरी तरह, फाइल पर फाइल वर्क नहीं करता, इट वर्क्स ऑन द फोल्डर। तो यहाँ पर जाएं, डेस्कटॉप पर मेरा बना हुआ है, हमने सी प्रॉक्स बना हुआ है। सेलेक्ट द फोल्डर, ये आपने ओपन कर लेना है, थोड़ा रुक जाइए, आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेगा डू यू ट्रस्ट द ऑथर ऑफ द फाइल। डॉट कोड करने से भी यही होता, वो नहीं अभी वर्क किया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो डू यू ट्रस्ट आपको यहां पर करना है, क्लिक कर दें और यहां पर कर दें यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स, ओके। क्लिक हियर।
ठीक, यू हैव क्रिएटेड अ फोल्डर। अब वो फोल्डर आपका बन गया है जिस